السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیڈرل بی ایریا، بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ آج جو ہم نیا سبق پڑھیں گے وہ نیا سبق ہمارا یہ ہے کہ قرآنی عربی کے جملے بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے ہم نے مرکبات پڑھے تھے۔ مرکبات کا یہ تھا کہ مفرد یعنی ایک اور ایک مل کے مرکب بنتا تھا، ایک جملہ دو پلس دوسرا جملہ، تو وہ مرکب بنتا تھا۔ مرکب کو دو قسمیں تھی، ایک مرکب ناقص تھی اور ایک مرکب تام تھا۔ مرکب ناقص اس کو کہتے تھے جس سے بات مکمل نہیں ہوتی تھی۔ نئی مسجد سے کیا ہوتا ہے؟ گورا لڑکا، یہ بات مکمل نہیں ہوئی لیکن بات سمجھ آتی کہ آگے اس کے آگے کچھ ہوگا، تو وہ اس کو کہتے تھے مرکب ناقص۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ مرکب تام یہ ہے کہ یہ ایک اچھا لڑکا ہے ہوں، یعنی وہ جملہ ختم ہونے میں وہ ہمیں بتاتا تھا کہ یہ تام مانے مکمل جملہ، تو مرکب تام جو ہے اس کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ تعالی یہ پڑھیں گے۔ اور جیسے ہم نے پچھلے مرکبات پڑھے تھے، ہر کے دو حصے تھے، یہ مرکب تام کے بھی دو حصے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ ہم اس کو شروع کریں، پچھلی ہماری کلاس تھی مرکب اشاری، اس میں کچھ دو تین باتیں رہ گئی تھیں اور دو تین لوگوں نے سوال کیا تھا، اس لیے اس کو میں دہرانا چاہتا ہوں کہ تاکہ وہ کلیئر ہو جائے معاملہ۔ تو مرکب اشاری جو آپ نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ مرکب اشاری کے بھی دو جز ہوتے ہیں۔ مرکب اشاری کے ایک اشارہ یعنی اشارہ اور دوسرا مشار الیہ۔ مشار الیہ اسے کہتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو اس کا قاعدہ یہ تھا کہ ہم پہلے اشارہ کرنے سے پہلے مشار الیہ کو دیکھتے ہیں کہ مشار الیہ جو ہے وہ مؤنث ہے تو ہمارا اشارہ بھی مؤنث کا ہوگا، قریب کا ہے تو ہم یعنی قریب کا اشارہ استعمال کریں گے، دور ہے اگر وہ چیز تو ہم بعید یعنی دور کا اشارہ استعمال کریں گے۔ تو یہ وہ تھا، اور اس میں کوئی اتنی مشکل بھی نہیں تھی، ہم نے آرام سے کیا تھا۔ اس لیے آج چند نئے بھی ہیں لوگ، تو اس لیے کرتے یہ ہیں کہ ہم اس کو دہرا لیتے ہیں کہ اشارہ کے معنی آپ سمجھ، اشارہ ہم اردو میں پہلے کرتے ہیں یہ عربی میں ہوتا ہے کہ واحد اور واحد سے دوسرا جو صیغہ ہوتا ہے وہ دو ہوتا ہے، دو سے زیادہ کو جمع کرتے ہیں۔ ہماری اردو زبان میں ہوتا ہے واحد اور جمع، لیکن عربی میں واحد، مثنی اور جمع کہلاتا ہے۔ واحد ایک، مثنی دو اور دو سے زیادہ جمع کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کیونکہ عربی زبان میں خاص طور پہ اشارے میں مثنی بہت کم استعمال ہوا ہے، اس لیے پچھلی دفعہ ہم نے مثنی کو استعمال نہیں کیا تھا۔ ہم کوشش کریں گے واحد اور جمع استعمال کریں۔ ہاذا، یہ اشارہ کرتے جائیں، آپ بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں وہ مذکر کا ہوگا اور دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے وہ مؤنث کا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، تو ہم بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں قریب کی طرف، ہاذا یہ، ہاذا یہ، ہاذا یہ، ہاؤلائے یہ سب، ہاؤلائے یہ سب، پھر سے کریں ہاذا یہ اور ہاؤلائے یہ سب، ہاذہی
मोन्नस का बुराई, हाजी ये, और हाउलाए ये सब। हाउलाए दोनों का सेम है, लेकिन हाजा और हाजी में थोड़ा सा फर्क है। फिर से करने, हाजी ये, हाउलाई। अच्छा, दूर के इशारा को करते हैं जालिक। कौन सा है? मुजक्कर। ये दाएं हाथ जो है हमारा जब भी उठता है मुजक्कर के लिए, बाएं हाथ मुअन्नस के लिए। तो एक से इशारा हम वाहिद के लिए करते हैं, दो से इशारा जो है तस्निया यानी मुस्ना के लिए करते हैं, और पूरे हाथ से इशारा जो करते हैं जमा के लिए करते हैं। तो जालिका उलाइका, यानी जालिका वो, और उलाइका वो सब। मुअन्नस से इशारा करें तिलका उलाइका। फिर से इशारा करें जालिका वो, उलाइका वो सब। तिलका मुअन्नस के लिए वो, और उलाइका, ठीक है, वो सब, इसलिए थोड़ा सा कर देंगे। अब एक चीज जो नई आप लोग आमतौर पे पढ़ते हैं, लोग आते हैं, ये सब पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ कि आपको सब कुछ मालूम हो, ताकि कोई लफ्ज आए तो ये कि ये कैसे आ गया। आमतौर पे आप देखिए वो बिल्कुल नई चीज लगती है हमें। जालिका और तिलका के आखिर में, जालिका और तिलका में दो लफ्ज बता रहा हूँ। जालिका और तिलका, जालिका माने वो, तिलका माने वो मोन्नस के आखिर में जो काफ है, ये मुखातिब के वक्त तब्दील भी हो जाता है। और ये वाहिद ज़बान है, मैं समझता हूँ, जिसमें आप किसी को इशारा कर रहे हैं, वो ये भी बताता है कि कितने मुखातिब को इशारा किया आपने। अगर ये आप दो बैठे हैं और मैं कहूँ जाले का, तो माने वो हुआ, लेकिन ये बताऊंगा कि ये आप दोनों से कहा मैंने, तो मैं कहूँगा जालिकुमा, जालिकुमा, क्या कहूँगा? जालिकुमा। और अगर मैं आप सबको इशारा करके, आप मुखातिब आप सब हैं, तो मैं कहूँगा जालिकुम। ये कुरान में इस्तेमाल हुआ है, इससे पता चलता है कि कितने आदमी के जालिका और तिलका के आखिर में जो काफ से मुखातिब के लिहाज से बदल भी देते हैं, लेकिन माने सबका वही होता है। यानी मैं आपसे ये दिल में तस्वर करें कि दो से मुखातिब है, लेकिन मानी वही होगा कि ये वो दोनों और वो सब। मानी चाहे कुमा हो या कुम हो, वो जो इशारा है उसके मानी वही होंगे, उससे कोई चेंजिंग नहीं होंगे। लेकिन अपने आपको अरबी बता रही है कि आपने कितने आदमी से कहा। कुमा है तो दो आदमियों से कहा है, कुम है तो आपने दो से ज्यादा जमा में कहा है, ठीक है। आप देखें जालिका रब्बुका, जालिका रब्बुका, ये आपने वाहिद एक आदमी से कह रहे हैं, जालिका रब्बुका, वो तुम्हारा रब है। कहा माने तुम्हारा, ठीक है। ये असल में आपको थोड़ा सा लगेगा, मैं बाद में आपको वो भेज दूंगा, तो आप उस तैयारी कर लीजिएगा आपका। तो जालिका माने वो एक, तो जालिका रब्बो का, वो तुम्हारा रब है, ठीक है। अब ये कि मैं दो आदमी से खातिब हूं, मैं कह रहा हूं कि वो तुम दोनों का रब है, तो जालिकुमा रब्बुकुमा, कुमा दो के लिए आता है, कुम जमा के लिए आता है। का कुमा कुम, का एक, कुमा दो, कुम सब, ठीक है। रब्बो का तेरा रब, रब्बो कुमा तुम दोनों का रब, रब्बो कुम तुम सब का रब, ठीक है। तो जालिकुमा रब्बुकुमा, तुम दोनों का, वो तुम दोनों का रब है, ठीक है। है ये असल में, हाँ, जैसे हम वाहिद का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाहिद का वो होगा, जैसे मैं कहूँगा वो लोग जा रहा है, आप कहेंगे क्या कह दिया, वो लोग जा रहे हैं, वो तमाम जो जुमले हैं वो उसी हिसाब से होते हैं। अरबी में भी यही होता है कि जालिकुम जो है, इसलिए आपको ये रब्बकुम आ गया, जालिकुम लाहु रब्बकुम, यानी
जो ये है इससे क्या यानी सबसे मुखातिब है, यानी जो मुखातिब हैं वो सब हैं। तो वो अल्लाह तुम सब का रब है। इसमें कुम के माने नहीं कि कुम को समझे कि सबसे कह रहे हैं, मुखातिब को किसी जबान में नहीं बताया जाता, ठीक है। तो ये मुखातिब को समझे आपको कि ये बता रहे हैं आपको कि जिनसे मैं कह रहा हूँ वो कितने लोग हैं, दो से ज़्यादा हैं या दो हैं, ठीक है। जालिक कुन्ना जो है ये बता रहा है कि फीमेल के लिए कि कितने वो है। तिलका मैंने हमने बताया था तिलका, इसका होगा तिलकुमा, तिलकुम, यानी ये बताता है कि ये दो आदमी को बताया जा रहा है वो मोनस के, और ये बहुत सारे को बताया जा रहा है। अब इसका वो करें ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ज़ालिकुम खैरुल लकुम ये कुरान में इस्तेमाल हुआ है। इन कुंतुम तालमून, तुम मैं ज़ाले का माने वो, कुम माने आप सबको कहा जा रहा है। इसका तर्जुमा नहीं होगा, दिल में समझ लें कि ये सबको कहा जा रहा है। ज़ाले का वो खैर बेहतर है, लकुम आपके लिए, लकुम आपके लिए। हमने हरफ जार पढ़ा था तो हमने कहा था कि जब ली के माने लिए, और जब ली ज़मीर के साथ इस्तेमाल होता है तो ज़बर के साथ होता है। लहू, लका और लकुम, लना सिर्फ मुतकल्लम के लिए होता है, ठीक है। तो ज़ालिकुम खैरुल लकुम, वो बेहतर है, लकुम क्या, तुम सब के लिए। इन कुंतुम अगर तुम हो, तालमून अगर तुम जानते हो, तुम लोग अगर तुम लोग जानते हो। तिलकुम, अब ये तिलका है असल में, तिलकल जन्नता है, लेकिन ये कुम बता रहा है कि हम इतने लोगों से, दो से ज्यादा अफराद से कह रहे हैं कि तिलकल जन्नतु। तो ये इख्तियारी होता है कि आप बताएं, जायज़ होता है, इस्तेमाल करते हैं इससे। एक इसके हुस्न है कि ये आपको ये बता रहा है कि कितने लोग तुम खाते हो आप। तिलकमुल जन्नता, तिलका माने वो मोनस के लिए, तो वो बाग है, ये अल जन्नत लिखा है तो हमारी जन्नत है। जन्नतुन माने बाग होता है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जिन्नातुन है एक लफ्ज़ है जिन से, और एक ये है क्या कहते हैं जन्नतुन, और एक होता है जुन्नतुन, पेश लगा होता है तो वो ढाल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बाज़ औक़ात पढ़ते हुए कहीं जिन्नतुन लिखा है आप उसे बाग समझें, और जुन्नतुन लिखा है उसे बाग समझें, जुन्नतुन के माने ढाल, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ आपने यहाँ ख़त्म कर ली, ये जो हमने बता दिया। इसको आप है ना कैसेट में सुन भी लीजिएगा, और इसको यहाँ देख के वो भी कर लीजिएगा। गैर आकिल की जमा, एक मैंने बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अरबी ज़बान में आकिल तीन होते हैं, आकिल तीन होते हैं, बाकी सब गैर आकिल होते हैं। तीन कौन से थे? इंसान, फरिश्ते, जिन्नात। फिर से देखिए, आकिल कौन कहलाते हैं? इंसान, फरिश्ते और जिन्नात, बाकी सब गैर आकिल हैं। तो गैर आकिल की जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर आप है ना जब पिछली उसमें वीडियो देखेंगे, मैं भेज दूंगा आपको, तो उसमें जमा सालिम और जमा मुकस्सर आपको मिल जाएगा। तो जब भी जमा मुकस्सर आए गैर आकिल की, गैर आकिल में, अब मैं कहता हूँ दरवाज़ा आकिल है या गैर आकिल? गैर आकिल, ठीक है ना। तो अब इसको कहते हैं बाबुन, और इसकी जमा मुकस्सर जो है अबवाबुन। अब अबवाब तो हम उर्दू में भी करते हैं, अबवाब माने दरवाजे। तो हम जब इशारा करेंगे तो मोन्नस का करेंगे, मोन्नस वाहिद का, हम कहेंगे तिलका अबवाबुन। समझ नहीं बात? मस्जिद है,
मस्जिद आकिल है या गैर आकिल? गैर आकिल। मसाजिद कहना है हमने, जमा मसाजिद हम भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहेंगे मुन्नस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये मसाजिद भी वो जमा मुकस्सर है। तो तिलका मसाजिद, मसाजिद। अच्छा, अब यहाँ जो मिसाल दी है, तिलकल अय्याम, यौम माने होता दिन, ठीक है। अय्याम जो है जमा मुकस्सर है, इसलिए तिलका इस्तेमाल किया। तिलका माने वो, तो वो दिन, वो दिन। दिन तो हमारे उर्दू में है वो, लेकिन डेज कह सकते हैं, दैट। हाँ, यानी कि दैट डेज, ठीक है। क्योंकि दैट जो है औरत भी इस्तेमाल करती है, मर्द भी इस्तेमाल करते हैं। तिलकल अमसाल, मिसाल की जो जमा है अमसाल है, तो हमने वाहिद मुअन्नस का तिलका इशारा किया, वो वाहिद इस्तेमाल होता है, तो तिलकल अमसाल। हाज़िही बयूतो हसनाते, हाज़िल, ये, अब ये हाज़ी क्यों इस्तेमाल हुआ है? हाँ हाँ, करीब का है, लेकिन मुअन्नस है, क्यों इस्तेमाल हो रहा है? कि ये बुयूत है आगे, बैत माने घर, बुयूत माने बहुत से घर, तो जमा मुकस्सर है ये भी। जमा मुकस्सर और जमा सालिम आप जब तक पढ़े थोड़ा वो करेंगे तो आपको मुश्किल है नहीं, वो आसान है, लेकिन ये कि नहीं पता हो तो थोड़ा सा आपको होता है। तो हाजिल बयूतु हसना, तो ये घर, ये सब घर जो हैं खूबसूरत हैं, अच्छे हैं। आप ये पढ़ते होंगे तिलका आयातुल्लाह, तिलका आयातुल्लाह, ये आयातुल्लाह है जो मुरक्कब इजाफी है, इसमें क्या है, ना अल है ना तनवीन है, आयातुल लाह, और जो मुजाफ अलैह है उसके नीचे जेर है, तो अल्लाह की निशानियाँ, वो सब अल्लाह की निशानियाँ हैं। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कल भी, कि बहुत सी जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम जालिका कहते हैं, वो, ठीक है, वो जालिका मुज़क्कर, तिलका। तो जालिका और तिलका का मैं एक बता दूं कि उर्दू ज़बान में आपने देखा होगा कि जब मैं, मुझे कहना होता है मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को जब इज्जत देता हूँ ज़्यादा, तो वो कहते हैं हम ये काम कर रहे हैं, मैं अकेला हूँ करके हम ये काम कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, जैसे फर्ज क्या कि तुम, मैं तुम कहना चाहिए, तो मैं तुमको और जमा कहूँगा, आप क्या कर रहे हैं, ये अकेले हैं, हालांकि आप जमा का सीखा, मैं कहूँ अकेले हैं। इसी तरह अरबी ज़बान में किसी को इज्जत देना हो या किसी बात पे जोर देना हो, कोई लॉयल किस्म की चीज़ हो, तो दूर का इशारा इस्तेमाल करते हैं। दूर के माने भी होता है, जैसे जालिका के माने वो तो है, लेकिन अगर आगे जो इसम आ रहा है, कुरान है फर्ज किया, तो हम उसका ये मानी करेंगे। जैसे जालिकल किताब हो, अल किताब जो है इसके माने कुरान है, ये किताब जो है कुरान जिसके बारे में बात की जा रही है, तो जालिकल किताब, आप तर्जुमा देखें, ये किताब, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर तिलका आयातुल्लाह जो है, ये अल्लाह की आयातें हैं, ठीक है। तिलकल आयातुल्लाह है, अब तिलका क्या मतलब वो होता है, लेकिन ये आयातुल्लाह है, इसकी इज्जत है, और ठीक है, तो इसको आयातुल्लाह है। तिलका हदूदुल्लाह, हदूद किसे कहते हैं? हदूद, जिसमें हदूद में बांध दिया, ला, कानून, हदूद यानी इस हद से बाहर नहीं निकल सकते, ये कानून है, तो हदूद कहते हैं कानून। तिल का हदूद, ये अल्लाह के कानून है, या अल्लाह की हदें हैं, ठीक है। ये आपने एक तीसरी चीज़ पढ़ ली है कि अब ये एक मुजाफ होता है, मुजाफ और मुजाफ अलैह भी मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ आगे,
کہ مرکب इजाफी कहते हैं, उसमें एक मुजाफ होता है और एक मुजाफ अलैह होता है। आपको और कुछ लोगों को मालूम है कि मुजाफ जो है उस पर तनवीन नहीं लगती और अल बना के उसे मारफा नहीं बनाया जाए, यानी नकरा भी नहीं होता और मारफा भी नहीं होता। ठीक है, मुजाफ यानी जिसकी ताल्लुक किसी से पैदा किया जा रहा हो, जैसे अल्लाह की किताब है तो किताब का ताल्लुक अल्लाह से पेश होती जा रहा है, अल्लाह का ताल्लुक। अच्छा, ना तो अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुजाफ उसे कहते हैं जिसका ताल्लुक पैदा किया जा रहा है किसी से, यानी जिस चीज़ का ताल्लुक। मुजाफ अलैह माने उसकी तरफ, मुजाफ का ताल्लुक मुजाफ अलैह की तरफ होता है। तो मुजाफ अलैह वो होता है जिसकी, इसको पॉजिटिव केस भी कहते हैं, जैसे अल्लाह की किताब तो अल्लाह के पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो उसका तरीका ये है, अरबी में देखेंगे तो उस डिक्शनरी में देखेंगे तो किताबुन लिखा है, किताबुन माने एक किताब, और अल किताब माने दी बुक, दी बुक, किताबुन माने ए बुक। अच्छा, ना किताबुन कहते हैं तो दो पेज को तनवीन कहते हैं, और अल किताब कहते हैं तो अल किताबो तनवीन खत्म हो जाती है, अल किताबो दी बुक हो गया। तो इसमें ना अल लगेगा ना तनवीन लगेगी, सिर्फ लिखा जाएगा किताबू, किताबू। और दूसरी शर्त यह है कि मुजाफ अलैह हमेशा जेर में होगा, मजरूर होगा, ठीक है, मजरूर इसम होगा। तो किताबुल्लाही यानी कि अल्लाह की किताब, ठीक है। नाकतु कहते हैं ऊपरी को, नाकतुल्लाही अल्लाह की ऊपरी, ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादा मैं लिख को आप पिछली देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ वो देख लें कि अगर मुजाफ का इशारा करना हो इसमें इशारा में, तो वो बाद में आएगा, इशारा बाद में आएगा मुजाफ की तरफ। यानी ये जो है इब्नुल मुल्क, बादशाह का बेटा, इसमें देखिए ना अल है ना तनवीन है, इब्नुल मुल्की, और अगला जो लफ्ज़ है वो ज़ेर है, तो बादशाह का बेटा। और इशारा है ये, हाजा माने ये, मुजक्कर के लिए इब्न माने बेटा होता है, इब्न मुजक्कर है इसलिए इशारा भी मुजक्कर है, तो बादशाह का ये बेटा, ठीक है। लेकिन जब इस्मिया जुमला बनाएंगे तो हम कहें हाजब ने मुल्क, ये बादशाह का बेटा है, ये जब जुमला बनेगा तो हम इस तरह करेंगे, ठीक है। ये आपका थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी जो ये अदनान साहब आपका जो सवाल था ना वो हो गया कंप्लीट यहाँ पर, इसको मैंने फिर वाजे कर दिया, आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब देखिए एक चीज़ अब पढ़ते हैं, हा कदा। अब हा कदा जो है माने ऐसे ही, हा कदा जहाँ भी लिखा हो इसका माना ऐसे ही, और कजालिका या कजालिकी तो वैसे ही या ऐसा ही, ठीक है। कजालिका इस तरह, ये कजालिकी उस तरह, या वैसे ही ऐसे ही, ये दोनों माने होते हैं। अब ये आ माने आपको पता होगा, जो दूसरे लोग हैं, आ माने होता क्या, आ माने क्या होता है, जैसे आमतौर पे इसका जवाब यस और नो में देते हैं, ठीक है। हा, आ माने क्या, और हा कदा मैंने अभी बताया क्या माना, ऐसा ही, अर्शों का तेरा तख्त है, तेरा तख्त ऐसा ही है, क्या तेरा तख्त ऐसा ही है, ये किसने पूछा, अर्शों की है ये, उनसे पूछ रहे हैं, किससे, खातून से, क्या नाम है उनका, मलका सभा से पूछा जा रहा है कि क्या तेरा अर्श ऐसा ही है। कालत, उसने, उस मोहन्नस ने कहा, का अन्नहु हुआ, ऐसे ही है जैसे ये है,
یعنی اتنا ہے کہ لگ رہا کہ یہی ہے، حالانکہ وہ تھا وہی، کیونکہ اس نے تو منگایا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا، کذالکا مانے ہم نے آپ نے کیا پڑھا؟ ویسا ہی، ایسا ہی. کذالکا جزاء الکافرین، تو ایسا ہی بدلہ ہے کافرین کے لیے. ٹھیک ہے، ایسا ہی بدلہ ہے کافروں کے لیے. کالا کذالکا، یہ ایک جب فرشتہ آیا تھا مریم علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے کہا بھائی میں کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا اولاد؟ تو میں تو کسی نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو اس نے کالا کذالکا، یعنی وہ کہتا ہے، وہ مراد اللہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا. کذالکا کا مطلب سمجھیں نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تھوڑا. کالا کذالکا، وہ کہہ رہا ہے، اس نے کہا ایسے ہی ہوگا. کالا ربو کی، کس نے کہا ہے؟ تیرے رب نے. ربو کی کیوں؟ مؤنث کی وجہ سے. اگر مذکر ہوتا ربو کا ہوتا، لیکن یہ کالا ربو کی، تیرے رب نے کہا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے. ٹھیک ہے، میں آج یہ ختم کر دوں تاکہ آپ کو اگر یہ شاید پتہ نہیں کب ہو. ہاں ہونا، دیکھیے ہاں ہونا مانے یہاں، ہونا مانے یہاں، ہاں ہونا مانے یہیں، اور ہونا مانے یہاں، اور ہاں ہونا یہیں. یہ فرق سمجھیے تھوڑا سا. ہونا مانے یہاں، ہاں ہونا یہیں. اچھا، ہناک مانے وہاں، ہنالکا مانے بھی وہاں، اور ہناک مانے وہاں، یعنی اشارہ کیا جائے. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو کہا گیا تھا کہ ان سے لڑنے کے لیے دو وہ تھے نا، ہاروت اور ماروت، تو وہ ان کا بہت بڑا وہ تھا وہ. تو اس میں انہوں نے کہا ہم تو ان سے نہیں لڑیں گے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. تم موسیٰ سے کہا تم اور تمہارا رب جاؤ. تو پھر کوئی اور تھا، کیا تھا؟ جالوت اور وہ کوئی تھا نا. تو انہوں نے کہ انا، بے شک ہم، انا مانے بے شک ہم، ہاں ہونا یعنی ہاں ہونا یہیں، قائدون، قائد مانے بیٹھنا، قاعدہ کہتے ہیں نا بیٹھتے قاعدے میں. تو قائدون، ہم لوگ یہیں بیٹھے ہیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں، مطلب کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اس سے لڑو. ٹھیک ہے. دوسرا ہے ہنالکا مانے وہاں. ہنالکا، تو وہاں کیا کیا؟ دعائے ذکریہ، ذکریہ نے دعا کی اپنے رب سے، ربہ. وہیں دعا ذکریہ نے کی اپنے رب سے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو میں نے چاہا کہ آپ لوگ، مرد ہے نا. ہونا لکی سے مراد یہ کہ وہاں یہ وہ ہے کہ جیسے میں نے ہاں ہونا کہا تھا نا، ویسے ہونا لکی ہے. ٹھیک ہے، اس کے معنی بھی وہاں، اور اگر یہ ہونا کا لکھا ہوتا تب بھی یہی معنی ہوتے. اچھا یہاں لکھا نہیں، یہ یہاں ہے، یہ یہاں وہ غلط جگہ لگ گیا تھا. اچھا ایک آخری رہ گیا ہے. سب اگر خبر معروف باللام ہو تو اس میں اشارہ اور خبر کے دوران ایک ضمیر ڈالی جاتی ہے، اس کا سیکھے کو ہوتا ہے بڑھا دیتے ہیں. اس کلام میں موجود ہے حسر کا مضمون پیدا ہوتا ہے. یہ ایک بہت عام سی بات ہے، یہ بس تھوڑا سا کر دیتے ہیں. حاضہ مانے یہ، حاضہ مانے یہ، حاضل حق، اس کو چھوڑ دیں گے. حاضل حق، یہ حق، حاضل حق، یہ حق ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں کہوں حاضہ هو الحق، یہ میں پہلے یہاں لکھ دوں. دیکھیے اس کا دو جز ہوتا ہے، مبتدا، مبتدا اور خبر. یہ رفع ہوتے ہیں، یہ بھی رفع،
اور یہ مبتدا دوسرا مفعول. تو بہرحال اس کے مطابق ہے نا ہوا لائیں گے ہم. ہاذا هو الحق، یہی حق ہے، زور دیے جا رہے ہیں. جیسے اولئک کا معنی جمع ہے، اولئک المتقون، وہ لوگ متقی ہیں، لیکن اولئک هم المتقون، وہی لوگ، وہی سب لوگ متقی ہیں، وہی انہیں زور دیا جائے گا. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی اس کو